Good afternoon. In today's lecture, we will be discussing about anthropometry. Anthropometrics ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਨੀਚਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं और बिल्डिंग साइजेस डायमेंशंस दे आर रिलेटेड टू ह्यूमन प्रोपोर्शंस और ह्यूमन डायमेंशंस. Then tools or methods of design. There are basically three methods of design. One is the anthropometry, then design guidelines जो मैं आगे थोड़ा डिस्कस करांगा, and then design tools. What is anthropometry? This is a measurement of human dimensions जिस तरह के थोड़ा दसा है. Anthropos means the human and metricos means the measuring, और इन दोनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन that is the anthropometry, that is the human measurements or human dimensions. Like here, the people are different. They are of different age groups. The height wise they can be different. ਤਾਂ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਲਡ ਵਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੰਗ ਵਨ. ਤਾਂ ਯੰਗਰ ਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਫਰਨੀਚਰ ਹਾਈਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏਜਡ ਵਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਸਲੈਬਸ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਹਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ. ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਹਾਈਟ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜਿਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦ ਗਰਾਊਂਡ. ਦੈਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਂਥਰੋਪੋਮੈਟਰੀ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਮੀਜ਼ਰਿੰਗ ਪੀਪਲ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ? measure it is through index or through reference. ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਦੈਨ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਏਜ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਣਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਹਰੇਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੇਬਲੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਕੱਲੀ ਉਸ 'ਚ ਹਾਈਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਵੇਟ ਆਲਸੋ. ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਥਰੂ ਹਾਈਟ, it can be the length and stature or height of the body. ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਵਿਡਥ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਵੀ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਥਰੋਪੋਮੈਟਰੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ. ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵੀ ਨੀਡ ਆਰ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਈਜ਼ੀ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਚੀਪ, acceptable and reproducible. Anthropometry and physical characteristics of humans. Anthropometry is a science that deals with the measurement of size, mass, shape, and inertial properties of the human body. The results are statistical data describing human size, mass, and form. Then definitions. What is anthropology? Anthropology is the science of human beings, that is a medical ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ. ਔਰ ਐਂਥਰੋਪੋਮੈਟਰੀ ਅ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਬੋਡੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟਸ. ਤਾਂ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਲੋਜੀ. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ. And anthropometry is a branch of physical anthropology dealing with body dimensions and measurements, that is the combination of both. Then divisions of anthropology or the anthropometry. Number one is the static anthropometry,
किन्ने टाइप की होंगी है एंथ्रोपोमेट्री? वन इज स्टैटिक एंथ्रोपोमेट्री, दैट इज अ बॉडी मेजरमेंट विदाउट मोशन in static form. Then dynamic anthropometry, the body measurement with motion. And third is the Newtonian anthropometry, that is a body segment measures for use in biomechanical analysis. Then second step is design tools. First is the body dimensions. Body dimensions आप already count करते हैं, they can be according to human variations. It can be according to age or the age variation and gender variation as well as long term population shifts. Human variation ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ dimensions ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, age according to age group, gender whether he is male or female, and long term population shifts के कुछ variations अपनी time ਦੇ ਨਾਲ वेरी कर जाती हैं. फर्स्ट इज द चेंजेस विद टाइम, दैट इज इंट्रा इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी. साइज एंड बॉडी सेगमेंट चेंज विद द पर्सनस एज. सम डायमेंशनस इंक्रीज वाइल अदर्स डिक्रीज. एज दे नाल जिस तरह एज नाल कुछ साइज और बॉडी सैगमेंट दे विच कुछ थोड़े जे बॉडी श्रिंक हो जाती है, कईयां दी झुकाव हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, और कई टाइम के नाल बड़े हो रहे हैं. जिस तरह छोटा बच्चा है वो टाइम के नाल लिमिट नाल बड़ा हो रहा है, तो उन्होंने उस तरह की रिक्वायरमेंट्स चाहिए हैं. दैन पीपल डिफरेंट, दैट इज इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी. इंडिविजुअल पीपल डिफर इन आर्म लेंथ, stature and weight, and therefore population samples are usually collected from cross sectional studies. इस तरीके नाल पीपल वेरी करते हैं, उन्होंने आर्म लेंथ या बॉडी लेंथ और उन्होंने वेट एंड स्टैचर, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ द बॉडी, दैट इज़ द हाइट और विड्थ. तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ. ਦੈਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟ੍ਰੈਂਡਸ. During the last 6 decades in North America and Europe, people have been growing taller by 1 centimeter per decade and heavier by 2 to 3 kg per decade. हर 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਈਟ बढ़ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ weight ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ. ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਮਿੰਗ 10 ਈਅਰਸ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ नवी टाइप की टैक्नोलॉजी या डिज़ाइंस आप बिल्डिंग या फर्नीचर अपने इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. डिज़ाइन प्रोसीजर्स. फर्स्ट इज सिलेक्ट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स दैट डायरेक्टली कॉरस्पॉन्ड टू द रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस. सेकेंड, डिटरमिन वेदर द डिज़ाइन मस्ट फिट अ सिंगुलर population percentile or a range along that dimension. And third is apply all the necessary correction factors. Fourth point, combine all selected design specifications into a model and check for feasibility. यानी कि सब तो पहले तो आप क्या करते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डायरेक्टली ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ उसके हाइट वेट एटसैट्रा. दैन ये सिंगल एक टाइप के पॉपूलेशन वास्ते है या कॉमन पीपल या मतलब मेजोरिटी वास्ते है, उस हिसाब नाल आप डिटरमिन करते हैं वो चीज़. जिस तरह के एक पर्टिकुलर केस एक बंदे नाल रिलेटेड हो सकता है, उस वास्ते आप डिज़ाइन कर रहे हैं, या आप पूरे एक जनरल पूरी एक कम्यूनिटी वास्ते आप डिज़ाइन कर रहे हैं. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्हें भी अपने करैक्शन फैक्टर्स हैं आप प्लस माइनस थोड़ी वेरीएशन कर लेने हैं, क्योंकि स्पैसीफिकली नहीं होंगे कि एक बंदा अगर आप नॉर्मल 5 फुट हाइट लेके चल रहे तो 5 फुट का ही होएगा. प्लस माइनस 5% वेरीएशन कैन बी देयर. और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उन्होंने अपने फिजिबिलिटी किस तरह है उसके आपको चैक फॉर्म च लैके आने हैं. दिस इज़ अ एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा. इस जो आप देखते हैं दिस इज़ द जिमें क्या सारी है, दिस इज़ द स्टैचर हाइट, आईज हाइट किन्ने तो किन्ने तक आप ऊपर देखते हैं, ठीक है. दैन शोल्डर हाइट फ्रॉम दैट ग्राउंड लेवल, एल्बो हाइट और नकल हाइट.
even the chest depth. These are the body dimensions, and this is according to the gender, male for female, and dimensions ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ mm ਦੇ ਵਿੱਚ dimensions ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਚਰ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਪੋਸਚਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈਟ। ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਹਾਈਟ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਟੌਪ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਹਾਈਟ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਥਾਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਂਡ ਬਟਕ ਨੀ ਹਾਈ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਲਬੋ ਰੈਸਟ ਹਾਈਟ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੁਨੀ ਰੈਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Then using anthropometric data, design for the extremes, design for an adjustable range and design for the average। ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੈਨ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਇੱਕ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਦੈਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ऑप्टिमल वर्क जोन। एक ह्यूमन बॉडी काम कर रही है, ही इज इन द सिटिंग पॉस्चर, दिस इज द वर्क एरिया और द वर्क टॉप काउंटर विच इज जस्ट अबव द नी एंड द थाई ऑफ दैट पर्सन। दिस इज द फुट रेस्ट एरिया, दिस इज द बैक विच इज टचिंग द शोल्डर और द बैक ऑफ द चेस्ट। okay, this is the width of the counter from the chest, front of the chest। एल्बो कितनी बार जाएगी, दिस इज ऑल गिवन इन सेंटीमीटर्स। तो इस अकॉर्डिंग आप जी है लैग वेथ, बॉडी वेथ, ठीक है, और अगर आप आर्म स्ट्रैचिज करते हैं तो अपन किन्नी किन्नी जोन्स चाहिए हैं, वो सारा आप ऐसा कैलकुलेट करते हैं। दिस इज अ वर्क सरफेस हाइट्स। फॉर एग्जांपल दिस इज अ जनरल चेयर, इसकी हाइट दी गई है, the seat of the height it is 14 inches to 21 inches, and the back of the chair top is 14 इंच 1 इंच तो बाद जी सीट की हाइट तो अबव 8 इंचज़ टू 12 इंचज़ 1 फुट तक होर उपर हो सकती है। यानी कि तकरीबन आप 1.25 फुट तो 2.5 फुट 1.25 फुट तक तो लैके 1.5 फुट तक अपनी सीट हाइट हो सकती है, ठीक है, और 1 फुट तक आप होर उपर बैक दे सकते हैं। और जी सीट है ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਨਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 5 to 10 degree, and this is the work surface, and the height of the work surface from the top of the seat it should be minimum 7 inches, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ knees और thighs properly आएंगे। and this is the footrest। footrest it should be in angular form, and the angle it should vary, it should be in between 25 degree, the slope it should be 25 degree। this is this picture is showing in the standing working conditions। this is counter height is 37 inches to 43 inches। if we are eating something या कुछ काम करना है, जिस तरह एक एल्बो रख के कुछ करना है और एक दूसरा आप कुछ वर्क अपने इंस्ट्रूमेंट्स नाल टूल्स नाल काम करना है, इट इज 34 inches to 37 inches। when we are working through by giving some pressure through our hands, तो जोर नाल काम करना है, it is 28 inches to 35 inches। then work surface heights, when a person is in standing position, our angle, eye angle or eye sight angle should be, this is 30 degree, and the correction factor is plus minus 2.5। ये अप डाउन हो सकती है थोड़ी बहुत अकॉर्डिंग टू इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और जो आप काउंटर पे खड़े हैं, द डिस्टेंस ऑफ द foot of the counter to the toe of the human feet it should be 15 centimeter minimum। these are the different postures। anthropometrics refers to measurements of humans, जिस तरह आप जानेंगे। now in this picture a person is standing, stretching his leg or standing his arm। in his standing position, by stretching his arm and by raising his hand, in standing position the hand is in front of him, that is सामने साइड से उन्होंने स्ट्रेच करना है उन्हें, and in general sitting proportion।
जिस तरह सारी है ये आप पिछे देखी है कि अपनी सिटिंग हाइट शुड भी 1.25 फुट तो 1.5 फुट, बैक दी चेयर हो सकती है 1 फुट तक होर ऊपर, यानी कि तकरीबन 2.5 फुट तक आप जा सकते हैं, 2.5 तो 3 फुट तक भी लै सकते हैं, ठीक है। और ये सारिया अलग अलग प्रपोर्शन जड़ियाँ हैं इत्थे आपको काउंट करनी पैंदियां। और नॉर्मल हाइट जी ह्यूमन बॉडी हाइट है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्टैक्सट, द मैन हाइट इज़ 5 फीट 6 इंचज़ एंड द वूमन इज़ 5 फीट 0 इंचज़। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोपोर्शन देखनी पैंती है। जिस तरह हम कोई कबर्ड चो कोई आप ऊपर अपर कबर्ड कोई चीज़ लेनी है तो आप आर्म अपनी स्ट्रैच है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी अलमीराज वगैरह डिज़ाइन होंगी हैं कि आप अपर स्लैब से ईजीली अपना हाथ पहुँच सके। In this case, this is the dimension for the total width of the body. जिस तरह ही खड़ा है, he is standing here, elbow है, arm ऊपर चकी हुई है, this is 5 inches. जिस तरह wrist तो लेके upper of the knee, upper of the elbow, this is 5 inches to 6 inches तक आप जनरली अपनी टर्निंग कह देने हैं। By stretching, then wrist to wrist, by stretching from elbow to elbow, by stretching from tip of finger, center finger to the tip of center finger। तो इस तरह अपने पाम दी भी अलग अलग प्रोपोर्शन या डायमेंशनस होंदियां हैं। कोई परसन व्हील चेयर ते है, व्हेन ही इज़ पेशेंट व्हील चेयर ते बैठा है तो वो आई प्रपोर्शनस, आई हाइट, व्हील चेयर की स्टैंडिंग पोजिशन स्टैंडिंग हाइट सॉरी सिटिंग हाइट, वो टोटल हाइट, और वो बैठ के अपना हाथ ऊपर स्ट्रैच कर सके इस तरह का स्टैंडिंग, वैन लेडीज स्टैंडिंग, वैन जेंट्स इज स्टैंडिंग। तो वो टोटल हाइट आप लैनी होंगी है कि वह हाथ पूरा का पूरा मूव करता है नीचे स्ट्रेट करने तो बाद टर्न एंड दैन रेज अप like here the dimensions are given up to the knee when he is in sitting position, from the toe to the lower of the knee it is 678 mm, and up to the top of the knee this is given, this is in the stretching form, the length of the leg 194, up to the eye height of the eye and up to the height of head, and these are the palm dimensions. जिस तरह से दी हुई है, when he is in standing position, the height is up to the shoulder is 1.2 to 1.55 meter, up to the eye level the height is 1.4 to 1.75 meter, and up to the head a total height is 1.5 to 1.9 meter. तो ये तीनों हाइट्स इंपॉर्टेंट आपको देखनी पैंदी है, हाइट, देन आई हाइट एंड द शोल्डर हाइट। In second case, when a person is stretching his arm, then maximum reach up is 1.85 to 2.10 मीटर कि जो बाद आप पूरा हाथ ऊपर अपना खिंच लिया है। ऑब्लिक रीच दैट इज़ 1.65 टू 2 मीटर कि जो आप थोड़ा जहा हले पूरी तरह ऊपर स्ट्रैच नहीं किया, थोड़े हले नीचे ही है लैवल ते। जनरली ये कंडीशन उदों होंगी जो आप कोई अपर कबर्ड के विचों किचन चों या किसी भी अपने बेडरूम वगैरह की कबर्ड चों अपर जी स्लैब्स हैं या शेल्फ हैं उतों की कोई सामान चकना है तो उस वास्ते आपको ये वाली हाइट अपनी स्टैंडर्ड देखने पैंदे हैं। एंड फॉरवर्ड रीच इज़ 1.3 टू 1.45 मीटर कि हाथ जो आप बिल्कुल सीधा अपना शोल्डर हाइट कह सकते हैं इनू, दिस इज 1.30 मीटर टू 1.45 मीटर। This is a condition when a person is moving on wheelchair. This is a wheelchair. Here this is wheelchair. The height of the toe is 0.18 to 0.22 meter and height of knee is 0.6 to 0.64 meter. This is the elbow height is 0.85 to 0.89 meter. The height of the shoulder is 0.99 to 1.14 meter. Eye height is 1.16 to 1.33 meter, and the
total height when he is sitting on wheelchair, that is up to the head, is 1.25 to 1.45 मीटर। तो इस अकॉर्डिंगली ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲੈਬਸ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। when he is stretching arm in the same case by sitting on that wheelchair, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ हैं, अलग-अलग एंगल ਤੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ रोटेट कर रहा है। द लोअर वन जिस तरह ने आर्म आपकी बिल्कुल नीचे रखी हुई है, अप टू द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर इज 0.26 to 0.45 मीटर। थोड़ा जिहा उपर चक्या उन्हें तो 0.67 to 0.72 मीटर। जो बिल्कुल स्ट्रैच किया है शोल्डर हाइट 0.99 to 1.08 मीटर। होर ऊपर लै गया 1.28 to 1.49 मीटर। होर काफ़ी वो एंगल ऊपर आप करता है 1.47 to 1.79 मीटर। एंड वैन ही इज़ स्ट्रैचिंग अपवर्ड मैक्सिमम रीच अप, जो ने पूरी तरह हाथ ऊपर चक लिया, इज हाइट इज़ 1.58 to 1.90 मीटर। ये जी वेरिएशन दी जाती है, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन प्रपोर्शनस कि कोई थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस एवरेज जी ले लेने हैं, उस करैक्शनस हो सकती हैं, कोई थोड़ा छोटा हो सकता है हाइट, कोई बड़ा हो सकता है। और डिफरेंट इंडिया अपने कंट्री कॉन्टैक्ट्स के भी आप इन्होंने काउंट कर सकते हैं। नाउ दिस पिक्चर इज शोइंग अ पर्सन इज सिटिंग ऑन डायस और सम काउंटर इन अ रेस्टोरेंट और सम एरिया, और दूसरी साइड पे है व्हेन ही इज इन द स्टैंडिंग पोजीशन। तो सिटिंग करके दिस इज 175 mm फ्रॉम द बेस टू द दैट इज द फुट ऑफ, यानी कि जो स्टैप अगर वो बैठा है उसे, तो इट शुड बी 175 mm। then from the lower level of your foot to the upper part of sitting is 455 mm। और काउंटर की जी विड्थ है दैट इज़ 280 mm, जो कि बॉडी तो तकरीबन 7 इंच आप चैस्ट तो या अपने स्टमक तो काउंटर का एज है इट शुड बी नॉर्मली 7 इंचज़ डिस्टेंस होना चाहिए वो, ताकि वो ईजीली अपना एल्बो जी है वो पर रेस्ट करा सके। इस पोजीशन में चाहे वो स्टैंडिंग है या उस चेयर पर बैठा है तो वो अलग अलग डायमेंशन दे जाती हैं। एंड वैन ही इज़ कंप्लीटली स्टैंडिंग द एल्बो हाइट इज़ 1100 mm फ्रॉम द बेस ऑफ द फुट। अगर वो कुछ फर्दर सेंट्रल पार्टीशन या काउंटर देते हुए हैं, द सेंटर वन इट कैन बी मैक्सिमम, इट कैन बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ, क्योंकि इतने आके अपनी बॉडी जी हैगी है थोड़ी थिन हो जाती है एज कंपेयर टू आर वेस्ट और द स्टमक एरिया। और लोअर वन इट शुड बी मिनिमम एंड दिस डायमेंशन शुड बी 100 mm, यानी कि जो पिछला काउंटर जो बाहर निकल रहा है और अंदरला जोड़ा है वो विचला डिस्टेंस इट शुड बी 100 mm। नीचला काउंटर आप सब तो छोटा इस करके रखनी है निचली स्लैब, ताकि जो खड़ा है तो उसके जोड़ा पैर का टो है वो उस चीज़ को स्ट्राइक ना करे और उस तरह बंदे के पैर से चोट नहीं पहुँचती। दैन डिफरेंट पॉस्चर्स व्हेन ही इज सिटिंग like in this way, the total stretch is 560 mm and this height from the foot of the from the base of the foot to the top of the head is 1090 mm। ये सारी डायमेंशन mm च है। जो पैर भार बैठा है, जो ये अपने नीज के उपर वेट पा के बैठा है, जिस तरह कोई आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, this is total stretch is 625 mm and this height reduces to 1000 mm, क्योंकि ये आप देख सकते हो पैर अपनी डेप्थ जी है वो आ गई, इस पैर अपना अपने लैग्स की जी मोटाई है वो मर्ज हो जाता है। और वैन ही इज़ इन योगा पोजीशन और मेडिटेशन दिस स्ट्रैच इंक्रीजेज अप टू 750 mm, क्योंकि अपनी इतने आप जिस तरह कोई चौंकड़ी मार के बैठते हैं तो अपनी स्ट्रैच पूरी हो जाती है। एंड हाइट इज से अगेन 1000 mm। जो कोई पर्सन इस तरह कोई लेटवी पोजीशन है, दिस स्ट्रैच इज़ 1375 mm एंड द हाइट रिड्यूसेस टू 760 mm। जिस तरह कोई निचले कबर्ड च आप कोई सामान लेना है तो आप नीचे बैठ के करते हैं, तो दैट पोस्चर इस टाइप का कुछ पोस्चर अपना आ जाता है, कोई निचले अपने
बिल्कुल लोअर मोस्ट स्लैब्स या काउंटर्स चो आप कुछ समान निकालना है, सपोज आप कोई शू रैक डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई कबर्ड डिज़ाइन किया है, तो उसके साथ नीचे बैठ के काम करना पड़ेगा। द विड्थ द स्ट्रेच गोज़ टू 1125 mm एंड द हाइट इज़ अराउंड 1000 mm। ये सारे पोस्चर अपन इस करके स्टडी करने पैंदे है, इस अकॉर्डिंग ही आप अपना फर्नीचर आप डिज़ाइन करना है। और दूसरा ये विड्थ अपनी काम आती है ताकि ये बैक साइड की जी स्पेस है इन्नी मिनीमम अपन क्लीयरेंस एक तरह की कह सकते अपन चाहिए है। सपोज ये किसी कमरे का बैडरूम कबर्ड है, अगर आप इस इन्ना स्पेस दे के आप अपना बैड नहीं लगाते तो वह बंदा नीचे बैठ के आराम नाल अपना कबर्ड चो समान नहीं कढ़ पाएगा। इस करके अपन ये डायमेंशनस अपने ध्यान च रखनी चाहिए जो आप कोई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, कोई बिल्डिंग या काउंटर या कबर्ड कोई डिज़ाइन कर रहे हैं। This is another type of postures. When this lady is coming by having something in her hands, जिस तरह कोई ट्रे लेके आ रही है कुछ सर्व करने वास्ते, एंड दिस इज द डाइनिंग स्पेस, काउंटर है, द पर्सन आर सिटिंग ऑल अराउंड। सपोज दिस इज द वॉल, तो ये दिस इज द डोर हाइट, तो घट्टो घट्ट जी 560 to 635 mm should be the minimum door height so that a lady with some tray may enter into that open area। इन्नी घट्टो घट्ट ओपनिंग अपन बहुत जरूरी चाहिए है क्योंकि उसके हथ उस टाइम एल्बोज अपनी स्ट्रैच हो गई है। हुण एक बंदा चेयर पर बैठा है डाइनिंग वास्ते, तो उसकी चेयर जी टोटल विड्थ है अप टू द नीज, बैक ऑफ द चेयर सीट टू द फ्रंट ऑफ द नी इट शुड बी 560 mm एंड द इनर ऑफ द लैग, क्योंकि आप पैर थोड़े अंदर करके करते हैं, तो ये डायमेंशन जी है अप टू द बैक ऑफ द सीट इट शुड बी 380 mm। कई बार आप जो उठना है तो आप चेयर पीछे करके बैठते हैं या बैठन लगे आप चेयर थोड़ी जी पहले पीछे खिसकाने हैं फिर आप बैठते हैं। ये दो कलर पिक्चर डिस्क्राइब की गई है। ये रेड वाली कलर ये शो कर रही है कि बंदा जो खड़ा होया या उन्हें बैठना है, बैठन तो पहले अपनी चेयर पीछे आ ब्लू तो रेड तक अपनी इतने शिफ्ट करता है, उस तो बाद बैठ के फिर चेयर अगे करता है। तो जो जिन्नी शिफ्टिंग है, ठीक है, दिस इज़ नोन एज द डेप्थ ऑफ चेयर कि जिन्नी उन्हें बैठनी है, दिस इज़ द डेप्थ ऑफ चेयर। और ये जोड़ा है दिस इज़ 130 mm बी जोड़ा दिस इज़ बी कि अपन जी क्लीयरेंस है वो अपन कितनी चाहिए है कि एक चेयर कितनी पिछे होंगी है, आप ये अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लगाने कि वो 130 mm चेयर नू पिछे करेगा। एंड फ्रॉम द और आर हाइट अप टू द टॉप व्हेन ही इज इन सिटिंग पोजीशन फ्रॉम द नी टू द टॉप ऑफ द हेड इट इज़ 890 mm। तो वो अकॉर्डिंग अपन काउंटर हाइट देनी है, जिस तरह कि आप देख सकते हो हेयर द टॉप ऑफ द सीट इज़ 450 mm, from the seat to the top of the counter is 300 mm, that is total is 750 mm is the height of counter, and the our waist line is 600 mm। तो आप 150 mm अपनी वेस्ट तो काउंटर ऊपर रखते हैं ताकि अपनी एल्बोज ईजिली उत्थे फोल्ड होके आप रख सकिए। एंड देन टोटल स्ट्रैच इज़ 685 mm। तो उस अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ सीट्स या डाइनिंग एरिया या डाइनिंग स्पेस आप डिज़ाइन करते हैं कि आपको कितनी स्पेस टोटल प्रोवाइड करनी है या कितने सीटर वास्ते आप डाइनिंग टेबल डिज़ाइन करना है। दिस इज़ अ लिविंग एरिया व्हेन दे आर इन सिटिंग ऑल अराउंड, दिस इज़ अ सोफा सिटिंग 3 सीटर सोफा, दिस इज़ अ सिंगल चेयर सिटिंग, ऑल टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज being shown here parallel to the wall, this is 3 सीटर parallel to the wall, या आप कोई सिंगल सीटर हैं उसके सामने डायगोनल च रख देते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द एंड ऑफ द टेबल टू द फ्रंट ऑफ द सोफा इट शुड बी और द सीट इट शुड बी 600 mm एंड द क्लियरेंस ऑफ द एज ऑफ द सोफा सिटिंग टू द वॉल इट शुड बी 600 mm अगेन हेयर अगेन दिस इज 600 mm। तो 600 mm की स्पेस आपको घट्टो घट्ट चाहिए है ताकि जो आप कोई बैठे हैं लाइक हेयर इतने लैग स्ट्रैच करके बैठे हैं या आप लैग फोल्ड करके भी बैठे हैं तो भी आपको अंदर क्लीयरेंस चाहिए है कि दूसरा बंदा अगर कोई होर इतने आके सीट पर बैठना चाहता है तो उस जगह के ईजिली एंटर हो सकता है। दिस इज़ द डोर ओपनिंग और द मेन पैसेज द क्लीयरेंस जितों कि उन्होंने सर्विंग वास्ते कोई सामान आएगा, कोई वेटर या कोई सर्वेंट कोई सामान लेके आ रहा है या कोई मेड आ रही है, इट शुड बी 850 mm मिनिमम क्योंकि वो हाथ कोई ट्रे है
सर्विंग वास्ते कोई समान है, एंड एल्बोज आर बीइंग स्ट्रेच्ड हेयर, सो दिस स्पेस शुड बी 850 mm। और ये जो आप नीज टू नीज का एक सर्कल लगा दिता है इतने, दिस सर्कल द रेडियस इज 26